वेलकम बैक एवरीवन। दिस इज प्रेम कुमार, a chartered accountant। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर दोस्त जिनको रिस्क एडवाइजरी में, इंटरनल ऑडिट में करियर बनाना है, या सिर्फ उनके पास यही चॉइस रह गई है। देयर आर पीपल लाइक दैट who are not in audit. So if you are looking into this space, internal audit slash risk advisory, दिस वीडियो इज फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट। हम बहुत बातें करने वाले हैं। लोकल स्टेटस क्या है, ये क्या चीज़ है, बाहर की जॉब्स का क्या सीन है, एवरीथिंग वी आर गोना कवर इन दिस वीडियो। सो आई होप यू वॉच इट फुल एंड आई हैव माय फ्रेंड विद मी ऑन द स्क्रीन, सो हम लोग इस चीज़ को फुल कवर करेंगे। इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yeah, sure. Hi, hello everyone. I am Mohammed Ali. I'm a risk advising professional. I started my journey back in 2014 with Deloitte. Then after 4 years, 4.5 years, I moved to PwC. So I have worked in two of the big fours. And then I moved to industry and now working in one of the largest. I started in internal audit, then I moved to transformation. So I would like to just give you a sketch of what risk advisory is and what what an internal auditor actually does on a daily basis. So should I give an intro? Prem, is it fine? Yes, I think we just need to start with very brief highlights कि Yeah, किसी को अभी sure. शुरू करना है इसका ये करियर, तो उसके लिए क्या है ये करियर, like what does it even look like? Yeah, sure. So basically, the most popular area is assurance, right? Core assurance, that is external audit. So everyone knows about what an external auditor does and what are his responsibility. But for internal audit, basically, we are looking after the internal controls and how they can be improved, how we can make any organizational operations more effective and more efficient, and how we can make sure that every organization comply with the local regulations that they are expected to comply with. So these are the few objectives that an internal auditor has. And the major difference between external audit and an internal auditor is that external audit is there to just give a reasonable assurance and give an opinion on the financial statements, whereas an internal auditor has a very bird eye view over across all the functions and all the processes of an organization. So you can say that an internal auditor has a helicopter view of the organization, and you know about different risks, not just financial risk, but regulatory risk, market risk, business risk, technology risk. So there are multiple risks, and the landscape that you cover is very huge. So this is really helpful. एक brief idea मिल गया, and I know it's a huge market. जैसे external audit में हर चीज़ अलग अलग है, तो internal audit it's just आप बाहर से देख रहे हो तो और इंटरनल ऑडिट वाले अंदर से देख रहे हो उन्हीं चीज़ों को, तो that's a major difference. अच्छा, हम डिटेल्स में जाने से पहले करियर क्या अच्छा है ये अगेंस्ट एक्सटर्नल ऑडिट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एक बंदा स्टार्ट कर रहा है अपना करियर, मैं जा रहा हूँ अपने आर्टिकलशिप के लिए, मुझे ऑप्शन मिलता है एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और भी चीज़ें, वैसे मिलता नहीं है, लेकिन जस्ट केस मिलता है। तो व्हाई एनीबॉडी शुड कंसीडर दिस? ओके, सो देखें, अगर आपका ऑब्जेक्टिव शुरू से है कि आपको फाइनेंस में जाना है, आपको सीएफओ बनना है, तो आई थिंक एक्सटर्नल ऑडिट इज द बेस्ट बेट. यू शुड गो फॉर एक्सटर्नल ऑडिट बिकॉज you will have expertise in financial statements, and your analytical skills will be developed in a certain way. There is a requirement of an external auditor. But अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको पूरे बिजनेस को समझना है, आपको आगे जाके अपना बिजनेस रन करना है, लेट्स से यू हैव टू ओपन योर ओन ऑडिट फर्म, या आपको अपना जो है कोई दूसरा बिजनेस करना है, या आपको कोई फैमिली बिजनेस जिसको आपको फर्दर एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए आपको इंटरनल ऑडिट में आना चाहिए. उसकी वजह ये है कि इंटरनल ऑडिट में जब आप आएंगे तो आप खाली फाइनेंशियल रिस्क को कवर नहीं कर रहे होंगे, आप हर तरह के रिस्क को कवर कर रहे होंगे. उसकी वजह क्या है कि जब आप इंटरनल ऑडिट में आते हैं तो हमारा एक 3 साल का नॉर्मली एक प्लान होता है, ऑडिट प्लान, जिसके अंदर हम सारे फंक्शंस को कवर कर रहे होते हैं. उसके अंदर बिजनेस साइड भी होती है, ऑपरेशन साइड भी होती है, तो हर एरिया को आप टच करते हैं. जब आप अज्यूम करें कि आपने मार्केटिंग का ऑडिट किया, आपने एचआर का ऑडिट किया, आपने एडमिन का ऑडिट किया, आपने जो सेल्स है, सेल्स टीम है, उसका ऑडिट किया. डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, जैसे ऑर्डर टू कैश होता है. इसी तरीके से इन्वेंट्री, पूरी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको पता है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पूरी. सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, आपने वो कवर करने होते हैं. तो आपका जो स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इंटरनल ऑडिट में आने से. और अब रही बात ये कि इसका स्कोप कितना है, तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है. उसकी वजह ये है कि एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर आपकी पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप कंटिन्यू करें फर्म के अंदर और आगे जाके जो पार्टनर बनने का एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो आप अचीव करें, या फिर आप इंडस्ट्री में जाएं और आप जो है वो फाइनेंशियल कंट्रोलर बने और उसके बाद आप अल्टीमेटली सीएफओ बनना.
लेकिन अगर आप इंटरनल ऑडिट परस्यू करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा आपका स्पेक्ट्रम बड़ा है। उसकी वजह यह है कि जैसे अगर आप मेरी एग्जांपल में, मेरा पैशन है रिस्क एडवाइजरी, सो मैं इंटरनल ऑडिट में गया इंडस्ट्री में, उसके बाद अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव कर रहा हूँ। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशन लीड फॉर वन ऑफ द मेजर वर्क स्ट्रीम्स दैट इज ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। सो ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा स्कोप है इसका, और इस वक्त पूरी दुनिया में जो है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन हुई हैं पिछले 10 सालों में, और जैसा आपको पता है ब्लॉकचेन इस वक्त आया हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, तो दुनिया उस तरफ जा रही है। पाकिस्तान भी जाहिर सी बात है फॉलो करता है, पिछले थोड़ा पीछे होते हैं लेकिन एटलीस्ट हम फॉलो करते हैं फिर आगे जाके यूरोप को, यूएस को। सो अगर आप इंटरनल ऑडिट में आते हैं तो फिर आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शन होंगे। आप इधर इंटरनल ऑडिट ज्वाइन करें, आप ट्रांसफॉर्मेशन टीम ज्वाइन करें, आप ऑपरेशन एक्सीलेंस में चले जाएं। ऑपरेशन एक्सीलेंस एक अपने अंदर बहुत बड़ी दुनिया है। सो ये फर्क है। अगर आप बिल्कुल एंट्री लेवल पे हैं और आपको चॉइस मिल रही है, जैसे नॉर्मली प्रेम ने बिल्कुल सही कहा कि चॉइस होती नहीं है, हमें बताया जाता है कि आप ज्वाइन कर लें हमारा ये फला लाइन आप ज्वाइन कर लें बिजनेस लाइन। सो अगर आपके पास चॉइस है और आपको लगता है कि यार सीएफओ इज नॉट made for you, this is not the right role for you, then you should definitely opt for internal audit or risk advisor. I know that's good. अच्छा, अब आगे जाने से पहले मैं खुद इंटरनल ऑडिट में काम कर चुका हूँ 6 महीने, बट बीइंग एन एक्सटर्नल ऑडिटर मुझे बिकॉज आई फेल्ट इट बोरिंग, बट ऑफ कोर्स आई नो अगर आप शुरू से कर रहे होगे तो यू नो एवरीथिंग। इस द मेरे दिमाग में जो इनिशियली था कि इट्स अ मैनुअल, लाइक आपको सिर्फ पढ़ना होता है एंड देन यू हैव टू राइट थिंग्स एंड दैट्स नॉट नंबर्स। जो एक कॉमन परसेप्शन है कि इंटरनल ऑडिट इज नॉट नंबर्स, इट्स एवरीथिंग अदर देन नंबर्स। सो उस पे कुछ स्लाइड लाइक व्हाई सम चार्ट अकाउंट पढ़ के आता है अपने टाइम में, दे जस्ट थिंक अच्छा हम नंबर्स में खेलेंगे, and then उस टाइम पे you just think it's this not numbers and should I even go for it? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है तुम्हारा प्रेम, क्योंकि देखो जिस तरह तुम्हारे ज्यादातर टाइम एक्सटर्नल ऑडिट में रहा, राइट? सो मेरे केस में इसका उल्टा है। मैंने स्टार्ट किया था एक्सटर्नल ऑडिट से, मैंने 1 साल एक्सटर्नल ऑडिट में काम किया, और लेकिन क्योंकि मेरा थोड़ा माइंड क्यूरियस है, मैं ना काफ़ी चीज़ों में स्टडी भी करता रहा शुरू में कि भाई अच्छा टैक्स की भी पूरी एक लाइन है, एक हमारी उस वक्त इसको कहते थे एंटरप्राइज रिस्क सर्विसेज, ईआरएस। बाद में इसको जाके डेलोइट ने रिस्क एडवाइजरी इसका नेम चेंज कर दिया। सो मैंने इसको भी स्टडी किया कि इसके अंदर सेम ईआरपी भी आजकल लोग बोल रहे होते हैं, तो वो भी इसी का पार्ट बनता है? नहीं, ईआरपी तो बिल्कुल अलग स्ट्रीम है, मतलब वो हम दर्शक कवर करते हैं, लेकिन बेसिकली ये रिस्क एडवाइजरी इज रिस्क मैनेजमेंट, राइट? कि कैसे आप अपने जो है ना रिस्क को मैनेज करते हैं जो कि आपके डिफरेंट प्रोसेसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। सो अब इसमें जब मैंने एक्सटर्नल ऑडिट ज्वाइन किया, मैंने देखा कि यार ठीक है, हमारा मतलब एक्सटर्नल ऑडिट तो पता ना जब जूनियर होता है तो उसका क्या काम होता है, तो मुझे छोटे छोटे जीएल दिए जाते थे सबसे पहले कि भाई ये जीएल आपने करना है। तो अल्टीमेटली हमें तो आपको पता है कि जो फाइल्स होती हैं वो भरनी होती है, तो हम ये एविडेंसेस बड़ी जमा बात कर करते रहे हो, थे। लोगों ने फोटोकॉपीज की हैं सबने ऑलमोस्ट सब बचपन में। ऐसे ही। तो नहीं यार, मेरी भी पहली जॉब अल्हम्दुलिल्लाह फोटोकॉपियर ही थी, और मैंने पूरे 1 हफ्ते तक से फोटोकॉपी करी थी। तो एक बहुत बड़ा क्लाइंट था और उस पर मेरा काम था, मुझे बड़े उससे भेजा गया। अच्छा, मुझे बकायदा डायरेक्टर ने बुलाया, उसने बोला कि अली आपको फला क्लाइंट पे जाना। और अच्छा, मैं बड़ा खुश क्योंकि किसी और की पोस्टिंग हुई नहीं थी, तो सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हो गई। तो मैं बड़ा खुश कि यार अब वहां जाके सीखने को मिलेगा और ऐसा होगा। अच्छा, उस क्लाइंट पे सारे असिस्टेंट मैनेजर्स थे, मतलब सीनियर टीम गई हुई थी काफी ना डिप्लॉय। अब मैं बड़ा खुश, मैं लगा यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया, क्लाइंट भी अच्छा है, टीम भी बड़ी अच्छी है। अच्छा, अब मैं जाके एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे अब ये कोई देंगे एरिया ना, क्या ये एरिया आपने करना है। पता चला कि यार उन्होंने पहले तो इंट्रोड्यूस कराया अपना, मेरा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद उन्होंने बोला कि यार हमें बड़ा मसला हो रहा है यहाँ पे फोटोकॉपी का, तो ये आपका काम है। पहले मुझे जाके उन्होंने सिखा दिया कि भाई ये इस तरीके से फोटोकॉपी आपने करनी है, और बस उसके बाद 1 हफ्ते तक यही मैंने काम किया। वो एक्सपर्टीज मुझे उस वक्त ही आ गई फोटोकॉपियर की। जेरोक्स से जो है ना ऐसी दोस्ती हुई कि उसके बाद well that's life. तो It's getting back to our thing. तो हम बात करते हैं अच्छा, बोरियत की। बिल्कुल। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें कि अगर मेरी तुम बात करो कि उसके बाद मैंने इसके बारे में काफी पढ़ा, और जब मैंने इसको फॉर्मली ज्वाइन किया रिस्क एडवाइजरी को, तो इसके अंदर ऐसा नहीं कि नंबर्स नहीं है और आपने जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पढ़ा है वो इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि ड्यू टू टेक्नोलॉजी अभी सब कुछ डाटा ड्रिवन है, राइट? तो अभी जैसे अगर हम अपनी बात करें, मैं एक बड़े बैंक में काम कर रहा हूँ, तो हमारे पास डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं।
और एक पूरा ब्रांचलेस बैंकिंग का हमारा प्लेटफॉर्म है जो कि बिल्कुल एक पैरेलल रन कर रहा है हमारी ब्रांचेस के साथ। सो बहुत ज्यादा डाटा जनरेट हो रहा है डेली बेसिस पे। तो अगर आप अच्छे हैं नंबर्स में, इफ यू आर गुड इन नंबर्स, इफ यू आर गुड इन एक्सेल, सो एक्सेल जैसा एक और सॉफ्टवेयर भी है, पावर बीआई, आपने उसका नाम सुना होगा बिल्कुल। तो उसमें आप डाटा एनालिटिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन है, उसके अंदर आप मैनुअल कोई टेस्टिंग कर नहीं सकते। आर यू गेटिंग? सो उसमें आपको क्या होता है कि उसके अंदर आप डिफरेंट पैरामीटर सेट करते हैं, उसमें से आप एक्सेप्शंस ड्रॉ करते हैं, और उन एक्सेप्शंस के ऊपर फिर आप अपने एनालिसिस परफॉर्म करते हैं कि यार वेदर ये एक्सेप्शंस एक्सेप्टेबल हैं, यानी कि ये हमारे कंट्रोल्स को बाईपास तो नहीं कर रही। तो उससे फिर क्या होता है कि डिफरेंट एक्सेप्शंस जब आप इस तरीके से निकालते हैं, अगर आप इफ यू आर गुड इन नंबर्स, तो आप बहुत अच्छे से उसे प्रेजेंट कर सकते हैं मैनेजमेंट को। और फिर ये रियल लाइफ का मैं बताता हूँ, हमने जो रिसेंटली कुछ ऑडिट्स किए, उसके अंदर मैनेजमेंट ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उसकी वजह क्या थी कि बिकॉज वी आर गुड इन नंबर्स, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, पीछे से बैकग्राउंड में वो सब करते आ रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिट भी किए हुए, सो हमारे एनालिटिकल साइड स्ट्रांग है ऑलरेडी। तो जब आपकी एनालिटिकल साइड स्ट्रांग होती है ना, तो आप डाटा के साथ बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। और इंटरनल ऑडिट में रहते हुए एक पूरी स्ट्रीम है जो कि सिर्फ एनालिटिक्स पे काम कर रही है। जिस तरह हमारे साथ होता क्या है, देखो हम जो डाटा साइंटिस्ट है ना, वो स्टैटिस्टिक्स में अच्छे होते हैं। अब हम स्टैटिस्टिक्स में इतने अच्छे नहीं होते, मतलब हमने पढ़ा होता है बिल्कुल, लेकिन अगर आपके पास एक डाटा साइंटिस्ट है और आपके पास नॉलेज है एज ए इंटरनल ऑडिटर अच्छी, तो आपका एनालिटिकल साइड स्ट्रांग है, तो आपकी बहुत ही डेडली कॉम्बो हो जाता है डाटा साइंटिस्ट के साथ, और आप बहुत अच्छी एक्सेप्शन निकाल सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बहुत हेल्प करती है। नहीं, सो that's इट्स good. वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, I think it's good. I think मैं दो चीजें highlight करूंगा, and correct me if I'm wrong. The first is it's a big umbrella. It's not कि एक छोटा सा area and you have to cover. It's the whole new line. वैसे भी एक नई सर्विस लाइन है पूरी अलग से, बिल्कुल so ऐसे it has a lot of things. और you can't be expert in everything. उसमें भी आपको एक choice देनी पड़ेगी. Transformation, risk advice, internal audits, operational excellence है जो भी है, and then just like audit, जैसे audit में different FS, non-FS, उसके अंदर भी different, there's a whole life out there. एंड सेकंड, हमने अभी बात की इंटरेस्टिंग जो दी डाटा वाली, ये वैसे तो हर किसी का सवाल होता है, इस पर 1 मिनट लगाते हैं। सो आई थिंक डाटा साइंटिस्ट जो भी जितना अच्छा हो, वो आपको कुछ निकाल के देंगे, उसके बाद काम इसी इन्हीं बंदों का, अकाउंटेंट्स का, एनालिस्ट का काम हमारा ही है। तो जो लोग परेशान है कि जॉब हमारी जा रही है, भाई नहीं जा रही, हमारा रोल चेंज हो रहा है टू more of analyst thing, not just number crunching guys now anymore. So I think just want to highlight that. बिल्कुल ऐसे ही। देखो इसमें 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 सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आप एंट्री लेवल पे हैं, आप चाहे ज्वाइन करें एक्सटर्नल ऑडिट, चाहे आप ज्वाइन करें इंटरनल ऑडिट। अगर आप टैक्स ज्वाइन करें ना, तो बिल्कुल अलग दुनिया है। सही है, टैक्स को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सक्लूड करेंगे, टैक्स एक बिल्कुल अलग दुनिया है। लेकिन अगर आप ज्वाइन करें एक्सटर्नल ऑडिट या आप ज्वाइन करें रिस्क एडवाइजरी, तो आपकी जो रिस्क की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। आपको रिस्क का इनसाइड आउट पता होना चाहिए। अब हमारे साथ मसला क्या होता है, हमारा बिजनेस एक्यूमेन डेवलप नहीं होता अर्ली ईयर्स में ना। मतलब जब हम सी एंटर करके ज्वाइन करते हैं फर्म, तो हम बिजनेस साइड पे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि जीरो होते हैं। मतलब हमारी कोई नॉलेज ही नहीं होती कि प्रैक्टिकल दुनिया में चीजें किस तरह चल रही। तो उस वक्त बड़ा जरूरी है कि आप अपने काम के साथ साथ में थोड़ा बिजनेस मॉडल को समझें कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, अज्यूम करें आप किसी फार्मास्यूटिकल में चले गए, चाहे आप एक्सटर्नल ऑडिट करने गए। अब अगर आप सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिट करने जा रहे हैं ना, तो आप उसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे नहीं कि वो फार्मास्यूटिकल काम कैसे कर रही है, उसके बाद पीछे इतनी बड़ी उन्होंने फील्ड फोर्स क्यों रखी हुई है सेल्स के अंदर, और उनका उनका जो बॉटम लाइन है वो बेसिकली ड्राइव किस चीज से हो रहा है। अगर आप इन सब चीजों को समझते हैं ना, बिजनेस मॉडल हर ऑर्गेनाइजेशन का समझते हैं डे वन से, तो जब आपके 3.5 साल पूरे होंगे ना आर्टिकल्स के, तो आपका एक अच्छे एक्सटर्नल ऑडिटर तो आप बन ही जाएंगे, लेकिन आपका एक बिजनेस एक्यूमेन भी डेवलप हो जाएगा। तो यार इस पे ना, खैर बिफोर मूविंग ऑन, आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जब एक्सप्लोर भी कर रहे हो ना, आई नो हम भी करते थे कि यार मैनुअल्स पढ़ रहे हैं, वो सब पढ़ते थे, लेकिन वो ऑडिट निकालने के लिए करते हैं। भाई ठीक है ना, वो टीओसीज भर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, इट्स डन। इतनी इंफॉर्मेशन आती है हमारे सामने पढ़ने के लिए, बट वी जस्ट वांट टू बस करना है। तो इफ समबडी कैन इन्वेस्ट द टाइम खुद के लिए, इट्स फाइन। एंड गाइस, मैं खुद अभी भी इंटरनल ऑडिट्स करता हूँ, सो आई एम एन एश्योरेंस गाय एज वेल इन यूके। मैं भी इंटरनल ऑडिट करता हूँ ट्रेजरी स्पेस के अंदर, सो आई नो इट्स गुड। इट्स बिट चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने एक्सप्लोर किया अपनी जिंदगी, पूरी पूरी जिंदगी में। तो मूविंग ऑन नेक्स्ट आइटम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आर्टिकलशिप तो कहीं भी कर लोगे, इंटरनल एक्सटर्नल, उसके बाद का सीन। सो आई थिंक
बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे। मैं यूके का मैं थोड़ा सा लोगों को आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे there was a, I don't exactly remember the name, but there was a report issued recently, इसमें बोला कि यार आपके जो ना इश्यूज हैं ऑडिट फर्म्स की सर्विस लाइंस के अंदर, एडवाइजरी वो मिक्स हो रहा है, एंड देन फर्म्स रियली नीड टू स्टेप अप एंड हैव द डिफरेंट फंक्शंस। उसके अलावा फिर आपका सॉक्स फ्रेमवर्क भी यूके में आ रहा है, व्हिच इज बेसिकली ऑल द कंट्रोल्स एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट जनरेट होने वाली है इन फ्यूचर ईयर्स। यूएस में तो ऑलरेडी है पीसीओबी के नाम से, सो यूके में भी आ रही है। नाउ गेटिंग बैक टू यू, व्हाट्स अपॉर्चुनिटीज बेसिकली, एंड पैसे भी थोड़ी सी बात करेंगे, लाइक समथिंग व्हाट पीपल शुड एक्सपेक्ट एट लोकल एंड देन इंटरनेशनल लेवल एज वेल। बिल्कुल। ये देखिए, इसमें अगर आप फर्म के हवाले से बात करें कि ऑडिट फर्म्स के लिए कितना अट्रैक्टिव है इंटरनल ऑडिट, तो मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि जो एक्सटर्नल ऑडिट है बेसिकली वो सबसे फर्म्स के लिए वो विजिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। हर फर्म चाहती है कि यार बड़े से बड़े एक्सटर्नल ऑडिट के क्लाइंट उसके पास आए, क्योंकि उससे विजिबिलिटी आपकी बनती है, और जितनी नेटवर्किंग एक्सटर्नल ऑडिट से मिलती है वो कहीं और से आपको नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे अथॉरिटी है, वहाँ पे आपकी एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, राइट। लेकिन उस एक्सटर्नल ऑडिट से फाइनेंशियली फर्म इतना कमा नहीं रही होती, क्योंकि वो एक एनुअल बेसिस पे फीस होती है जो आप चार्ज कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स मिलते हैं, आपको टैक्स के असाइनमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि आपकी नेटवर्किंग होती है, आप क्लाइंट आपके साथ एंगेज होगा, जाहिर है वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, जब वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा तो आप बताएंगे कि हाँ यार इसका सोल्यूशन हमारे पास है, इसका सोल्यूशन हमारे पास, टैक्स कंसल्टेंट हमारे पास हैं, हमारे पास एडवाइजर्स हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की सर्विसेज हमारी पूरी एक लाइन है, बिजनेस लाइन है, जो रिस्क एडवाइजरी उसको आप बोलें, उसको आप फाइनेंशियल सर्विसेज बोलें, उसको खाली एडवाइजरी बोलें, या उसको आप सिंपली इंटरनल ऑडिट बोलें। तो जब आप उन्हें बताते हैं कि हमारी डिफरेंट सर्विस लाइन है और हम आपको इस पे ऑफर कर सकते हैं सर्विस, यहाँ ना असल में होता क्या, यहाँ होता ये है कि यहाँ पे ना एक्सटर्नल ऑडिट तो अल्टीमेटली साल में आपने एक दफा ही करना है ना, और अगर बड़ा क्लाइंट है तो आप 6 महीने बाद रिव्यू पे चले जाएंगे एक दफा। इंटरनल ऑडिट में अगर आप आउटसोर्सिंग की बात करें, को सोर्सिंग की बात करें, या एक इसमें हमारा मॉडल होता है बीओटी का, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, तो ये 3 मॉडल हमारे चल रहे होते हैं ना इसमें। या तो हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि अभी अभी बनी है और वो किसी बड़ी फर्म को हायर करती है कि यार आप हमारा इंटरनल ऑडिट स्टैब्लिश करके दें, तो हम उसको पूरा स्क्रैच से उनका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाते हैं, बिल्ड उसको ऑपरेट करते हैं 6 महीने 1 साल, और फिर ट्रांसफर कर देते हैं उनकी रिसोर्सेज को। दूसरा होता है को सोर्सिंग, उनका इंटरनल ऑडिट ऑलरेडी है, वो हमसे कहते हैं कि यार हमारे पास कुछ स्किल सेट की कमी है, आप हमें वो स्किल सेट दे दें, हमें 6 बंदे दे दें, 8 बंदे दे दें, और वो को सोर्सिंग असाइनमेंट कहलाता है। एक होता है 100% आउटसोर्सिंग, कि यार एक बंदा, एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि यार मेरा पूरा इंटरनल ऑडिट आप देखें, मैं अपनी एक भी रिसोर्स नहीं रखूंगा, वो खाली एक ऑडिट कोऑर्डिनेटर रख देते हैं जो कि सिर्फ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स को। सो ये 3 मॉडल होते हैं और इन तीनों के अंदर बहुत पैसा है, चाहे आप बात करें को सोर्सिंग की, आउटसोर्सिंग की, या बीओटी की, तो इन तीनों के अंदर एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा पैसा है। अब बात यह है कि जब फर्म्स के लिए ज्यादा पैसा है तो ये कैसे हो सकता है कि जो उसमें काम कर रहा है उसके लिए पैसा ना हो। अगर आपका बिजनेस एक्यूमेन एक दफा डेवलप हो गया अच्छा वाला, और उसके साथ आपने अच्छे क्लाइंट्स कर लिए, तो ट्रस्ट मी, आप जैसे मैं अपनी अगर एग्जांपल लूँ कि क्योंकि मैंने शुरू से बिजनेस एक्यूमेन में थोड़ा काम किया, प्लस फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका ऑडिट भी मिल गया बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का, तो मुझे इनसाइड आउट पता भी चल गया कि भाई कैसे ये जो 4 पिलर्स हैं जिसमें प्रोसेस, पीपल, गवर्नेंस और हमारा ये आता है टेक्नोलॉजी, कैसे इन 4 एरियाज को हमें इम्प्रूव करना है। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आप एक ऐसी नीश मार्केट में आ जाएंगे जहाँ पे सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। हर ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क एडवाइजरी प्रोफेशनल चाहिए। अब या तो वो फर्म के पास जाएगी जो कि उससे लाखों में चार्ज करेगी महीने पे, या वो अगर वो आपको इंडिविजुअली हायर कर लेगी तो उसका फायदा है उसके अंदर, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि फिर आपको इनसाइड आउट पता हो रिस्क एडवाइजरी का। No, तो ये है। that's right. Yeah, no, I think demands तो हैं। Audit का सीन ये फाइनेंस का है कि there are a lot of fields out there. ऐसा 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 भी नहीं है कि एडवाइजरी के लिए भी लोग नहीं है। I think CAs, ACCAs, even आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, they are equally eligible for this space. और भी of course बहुत सारे लोग हैं। कंपटीशन तो होता है हमेशा हमेशा की तरह। Let's talk about international level. What do you think? मैंने यूके का थोड़ा सा एग्जांपल दिया, that there are opportunities, but मिडिल ईस्ट की बात करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बंदा जाता है अपना। ये बिल्कुल देखें, अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ कि मिडिल ईस्ट पे जो हमारी मेजॉरिटी रिसोर्सेज जाती है ना वो अश्योरेंस में जाती है। आप तो तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारी जो उनका एक सीजन आता है जिसके अंदर वो यहाँ से सेकंडमेंट भी बुलाते हैं,
पूरे सऊदीया, पूरा मिडिल ईस्ट हमारे यहाँ से सेकंड पे 4-6 महीने के लिए हर फर्म जाता है, चीप लेबर जाता है। चीप लेबर जाता है। और उसके अलावा फिर वो वहाँ पे उन्हें ऑफर भी कर देते हैं कि यार ठीक है, आप यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आ जाएं एज अ सुपरवाइजिंग सीनियर या एज अ असिस्टेंट मैनेजर को, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको ऑफर कर देते हैं। लेकिन मेजोरिटी हमारा जाता अश्योरेंस साइड पे ही है। अब रही बात ये कि भाई रिस्क एडवाइजरी में वहाँ पे कंसल्टिंग में जो स्पेस है या नहीं है, स्पेस बहुत है, लेकिन वो पूरी स्पेस इस वक्त फर्म्स ने ही एक्वायर करी हुई है। तो अल्टीमेटली वो फर्म्स बहुत टॉप क्वालिटी हायर करती हैं फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम एनी अदर नेशन। उनकी फिर कोशिश ये होती है कि वो जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, जैसे अगर अज्यूम करो एक आप तुम्हें पता है ना हर तरह का क्लाइंट आएगा, अब स्ट्रेटेजी का एक क्लाइंट आ गया, स्ट्रेटेजी आपको डिवाइस करके देनी है। स्ट्रेटेजी अगर कोई बहुत अच्छा रिस्क एडवाइजर है, उसने स्ट्रेटेजी पे अपना कुछ काम किया हुआ है, उसका बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप हुआ हुआ है, तो वो स्ट्रेटेजी पे ना कोई अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है। अदरवाइज अगर मैं किसी से भी बोलूँ क्या तुमने स्ट्रेटेजी का ऑडिट किया है, तो मेजोरिटी का आंसर होगा नहीं, हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि बहुत ही ना एक स्पेसिफिक एरिया है और उसके लिए आपकी एक स्किल सेट आपके पास होना चाहिए। तो अब वही वाली बात है कि अगर किसी का पैशन है तो वो स्ट्रेटेजी में भी जा सकता है, वो कह सकता है कि हाँ यार मेरे पास ये स्किल सेट है, मैंने ये असाइनमेंट इसके किए हैं। तो यही वाली बात है कि हमें बड़ा भी कंपटीशन वहाँ मिलता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट से। अब ये जो मैकेंजी है और डिफरेंट बीसीजी है, बहुत सारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स है बड़े बड़े दुनिया में। डिलॉइट इसके अंदर बहुत बड़ा है, यूके और यूएस में डिलॉइट का एक बहुत बड़ा मेजर शेयर जो है वो डिलॉइट के पास है मैनेजमेंट कंसल्टिंग का। डिलॉयट का नाम ही मैनेजमेंट कंसल्टिंग है यहाँ पे, लाइक इट्स नॉट ऐसे ऑडिट फर्म, इट्स अ कंसल्टिंग ऐसे फर्म। ही, ओके, बिल्कुल ऐसे ही। वेल आई थिंक दैट्स गुड। कंपटीशन तो है लाइक, एंड ऑडिट में सबसे ज्यादा बंदा आता है, यूके में भी सबसे ज्यादा बंदा ऑडिट में ही ऐसे आता ही, है। आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल टेक ऑडिट एज अ द फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपको एक यानी भाई यानी की कि जॉब मिलती है। ये सेफेस्ट ऑप्शन है ना, ये या मतलब ये कह लो कि ट्राइड एंड टेस्टेड या और सालों से प्रूवन एक वो है कि यार हम एक्सटर्नल में जाएंगे और फिर हमें दोनों हमारे पास रास्ते होंगे, या तो हम फर्म में ही रहें या फिर हम इंडस्ट्री में आके सीएफओ बन जाए। मैं एक चीज हाईलाइट कर दूं, सो आई थिंक एक्सटर्नल में फायदा ये होता है कि स्टैंडर्ड्स आर सेम इन द वर्ल्ड। जब आप कहीं भी जा रहे हो, थोड़े से प्रोसेस चेंज होते हैं, पीपल चेंज, बट एक्चुअली जो अंडरलाइंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम है। सो ऐसे बिल्कुल ह्यूज ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ह्यूज बेनिफिट आपको मिल जाता है। किसी एडवाइजरी कैपेसिटी में ये है कि आपको सब आता होगा, लेकिन जो मार्केट आपने देखी है इट्स अ वेरी स्मॉल स्केल एट लोकल लेवल। अब मैं यूके की मार्केट की बात करूं, आपने वो ट्रांजेक्शन वो चीज़ें नहीं देखी, एंड यू कांट कम्पीट मोस्ट लाइकली उस टाइम पे कि यार नहीं। एंड यू नीड, अगर यहाँ का बंदा 3 साल का एक्सपीरियंस, आपको वही 5 साल का एक्सपीरियंस शायद चाहिए हो टू कम्पीट इन दैट स्पेस, बिकॉज यू हैवंट सीन दैट बिग बिग थिंग्स आउट देयर। आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम। यार बिल्कुल तुम सही कह रहे हो प्रेम। होता क्या है, देखो ऑडिट जो है ना, एक्सटर्नल ऑडिट वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। कोई एक्सटर्नल ऑडिटर चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो, क्योंकि स्टैंडर्ड सेम है ना अल्टीमेटली। देखो एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो एक प्राइमरीली एक बैक ऑफिस जॉब है। आपने डाटा लेना है और आपने बैठ के एविडेंसेस इकट्ठे करने और आपने एक ओपिनियन देना है, और वो ओपिनियन बेस होगा स्टैंडर्ड्स के ऊपर, राइट। तो वो बड़ी यूनिवर्सल सी आपकी एक लैंग्वेज है, उससे आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसके अंदर आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है। रिस्क एडवाइजरी में बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, ऐसा नहीं है। रिस्क एडवाइजरी में अगर आपकी रिस्क की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपने किसी अच्छे लेवल पे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, तो आपका जो जो स्पेक्ट्रम है रिस्क का, वो जो लैंडस्केप है वो बड़ा वाइड होगा। अदरवाइज अगर आपने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ही इंटरनल ऑडिट परफॉर्म किया है, तो वो आपका स्पेक्ट्रम डेवलप ही नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल सही है कि अगर आप विद इन पाकिस्तान रहे हैं खाली और आप नहीं मूव किए मिडिल ईस्ट या यूके या यूएस, तो उस ब्रॉड जो ग्लोबल लेवल पे जो रिस्क की एक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इमर्जिंग जो रिस्क है ना सारे, वो सबसे पहले यूएस और यूरोप को हिट करते हैं, उसके बाद वो आते हैं एशिया में और मिडिल ईस्ट में और फिर एशिया में। सो बिल्कुल ऐसे ही है कि सबसे सेफेस्ट तो एक्सटर्नल ऑडिट ही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लें बिजनेस साइड पे, तो फिर आपको बिल्कुल आना चाहिए रिस्क पर। नहीं, इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, मैं क्लोजिंग की तरफ जाएंगे उससे पहले आई वांट टू हाईलाइट कि किस तरह की जॉब्स होती है यूके में फॉर एनीबॉडी हु इज जस्ट लुकिंग इनटू। सो मैं पोर्टल देख रहा था डेलॉयट यूके का, एनीबॉडी कैन वॉच दैट वीडियो भी है, कैसे नेविगेट करना है। सो इंटरनल ऑडिट इट्स नॉट लाइक कि इंटरनल ऑडिट बोल दिया कि यार करना है कॉर्पोरेट का एफएस का, इट्स नॉट लाइक दैट। इंटरनल ऑडिट के अंदर रिस्क एडवाइजरी की सर्विस लाइन है, उसके अंदर इंटरनल ऑडिट का एरिया है, फिर आपका जो ऑपरेशंस का एरिया है, उसके बाद उस सब के अंदर जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का है, इंडस्ट्रियल्स का है, वाटर एंड यूटिलिटीज का है,
एनर्जी का है, इस तरह के अलग से बने हुए हैं सारे सेक्टर्स। उसके बाद ESG की अलग बात कर रहे हैं, कार्बन की अलग बात कर रहे हैं। सो जॉब्स इस तरह आती हैं, इट्स नॉट कि आपने इंटरनल ऑडिट किया है, एडवाइजरी किया है तो आपको सब आता होगा। सो हमेशा मैं बोलता हूँ हर किसी को कि भाई कुछ भी करो, स्पेशलाइज हो जाओ उसके अंदर, डोंट गो टू जेनेरिक इन दिस मार्केट राइट नाउ। आपको कुछ नहीं मिलेगा उस मार्केट के अंदर, सो बी स्पेसिफिक। And yeah, and I think we will move towards closing. Any final comments for people who about this profession and what should we look forward to? बिल्कुल। इसमें यार देखो, मेरा जो फाइनल कमेंट्स होंगे ना वो ये होंगे कि अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा ना और आपसे कहा जा रहा है कि आप इंटरनल ऑडिट ज्वाइन कर लें, तो मेरा ख्याल है कि आपको नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप शुरू के 1 साल तक ना इसमें बड़ा डिस्कम्फर्ट रहेगा। आप बोलेंगे यार मुझे तो एक्सटर्नल में जाना था, मैं तो बस आ गया और मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने कर लिया। तो आप शुरू का 1 साल जाया कर देंगे, लिटरली आप जाया कर देंगे। फिर आपके पास पीछे से बचेंगे 2.5 साल। तो बेहतर ये है कि इसको ज्वाइन करने से पहले अज्यूम करें कि आपके पास एक बड़ी फर्म है जो कि आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं और उसने आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया, उसने आपको बोला यार आपने रिस्क एडवाइजरी या इंटरनल ऑडिट ही ज्वाइन करना है। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि पहले आप प्रेम के चैनल पे और डिफरेंट चैनल्स पे इंटरनल ऑडिट को समझ लें कि इंटरनल ऑडिट है क्या। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस साइड पे थोड़ा सा मतलब देखो इसमें ये होता है कि आप कितने अच्छे से इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी एफिशिएंसी पे काम करना तो आपको पसंद है, तो आप बिल्कुल इस तरफ आए। अदरवाइज आप डे वन पे ही मना करते हैं, आप किसी छोटी फर्म में चले जाएं, आप किसी दूसरी बिग फोर को ट्राई करें। आप अगर आप एक्सटर्नल नहीं जाएं, अगर आपको ये सूट नहीं करता डे वन पे, लेकिन इसको आप ये बोल के कि यार नहीं चलो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ फिर देखते हैं फिर इसको स्विच कर लेंगे, तो वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। एस मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि आपको डे वन पे रिसर्च करें इसके ऊपर। नहीं, दैट्स गुड। मैं एक चीज मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, डोंट नो मूव टू मच। ना आप 1 साल वहां पे दे रहे हो, 1 साल वहां पे दे रहे हो और आखिर में आप कहीं के नहीं रहते हो। सो स्टिक टू योर गन्स, लाइक इसमें जस्ट। प्रेम होता ही है ना। देखो अब आपके पास 3.5 साल है आर्टिकल में, सही। अगर आपने 1 साल शुरू का वैसे ही जाया कर दिया और आपने कुछ सीखा नहीं, तो फिर देखो होता है क्या, आप उस जूनियर की स्पेस से निकल गए ना, आप सेमी सीनियर हो गए। अब आपसे एक्सपेक्टेशन कुछ और है। अब आपको वो लर्निंग कर्व आप एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपका एक सर्टेन लर्निंग कर्व आ गया है, और अगर आपने 1 साल सिर्फ जाया किया है तो अल्टीमेटली फिर आप लॉस में। Well, that's really good. हमारी conversation has been quite good, and hopefully anybody who's looking into this space काफी हद तक आइडिया हो जाएगा। बाकी हम लोग हैं ही हैं, LinkedIn की profiles बिल्कुल I'm बिल्कुल। gonna put मेरा in the लिंक शेयर कर दीजिए, मेरा descriptions. लिंक Yeah, यू कैन शेयर माय लिंक, या यू कैन शेयर माय yeah, लिंक्डइन लिंक, एंड एनीवन हु वांट्स टू एक्सप्लोर इंटरनल ऑडिट फर्दर, रिस्क एडवाइजरी फर्दर, दे कैन डेफिनेटली कांटेक्ट मी। yeah. And last thing I would say, हम हमेशा कोशिश करते हैं सबको जवाब दें, but times are difficult, so delays are expected. So just take care of that. All right, thank you so much, Ali. थैंक यू प्रेम, थैंक यू एवरीवन।